A very good afternoon. Today in this lecture I will describe the method for the center of gravity. What is the definition of center of gravity? You know very well what is the center of gravity. Actually, the center of gravity may be defined as a single point for any object. That is that is uh, the part that point is the particular point from which the area is distributing in all the direction uniformly, and at that point the whole mass, whole area, whole weight is concentrated. Suppose that if the body is homogeneous, it means ki density or specific weight is constant, and in that case the centroid, center of mass, center of gravity will coincide each other. So we can use the centroid as for the center of gravity, or center of gravity for the centroid. It's vice versa. So here you can see the definition for the centroid. See over here, the plane figure have only areas but no mass. The center of area of such figure is known as centroid. Now, so what may be those methods on the behalf of we can calculate the value for the coordinate of the center of gravity or centroid or center of mass. So there may have the following three methods. First is by geometrical consideration, another one is by moments, as well as by graphical methods. So if we are interested to calculate the value of center of gravity for any object by geometrical consideration, then we can see here. Now a rectangle is drawn over here, as well as a triangle is drawn over here. Now in this figure you can see the L length is for the triangle, as well as H length for the height, for the another dimension of the rectangle. So how we can calculate the centroid for this particular type of rectangle? Basically, center of gravity of uniform rod is at its middle point. Second point, the center of gravity of rectangle or on a parallelogram is at the midpoint where diagonals meet each other. It is also middle point of the length as well as the width of the rectangle as shown in the above figure. Okay, इट मीन्स जो अगर L लेंथ है तो L का L/2 होगा, ये इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेंट्रॉइड का, और H/2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y बार हो जाएगा. ठीक, तो सेंट्रॉइड ऐसे निकल जाएगा. फिर यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया हुआ है. जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सेमी सर्कल इज एट डिस्टेंस 4r/3π फ्रॉम द बेस measured along the vertical radius as shown in figure in 6.4. तो अगर हम बात करें कोई सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का हमको सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है. ठीक, सपोज दैट जो सेमी सर्कल का जो रेडियस है, सेमी सर्कल का रेडियस मान लो स्मॉल r है, और इसका सेंट्रॉइड कोई कैपिटल G पॉइंट पे है. ठीक, कैपिटल G पॉइंट पे. तो जब इसका सेंट्रॉइड हम कैलकुलेट करेंगे तो सेमी सर्कल का जो बाय इंटीग्रेशन मेथड जो सेंट्रॉइड निकलता है, चूँकि ये यहाँ पे एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमको मिल जाएगी. इसका लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज है, ये पोर्शन और ये पोर्शन. तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, तो मतलब सेंट्रॉइड यहीं कहीं एग्जिस्ट करेगा इसी पॉइंट. ठीक, तो हम मान लेते हैं कि जो सेंट्रॉइड है वो G पॉइंट पे है. तो जब कैलकुलेट करते हैं तो सेमी सर्कल के लिए अगर स्मॉल r रेडियस सेमी सर्कल का है तो उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 4r/3π. ठीक, 4r/3π. ओके, 4r/3π हो जाएगा. तो y डायरेक्शन में इसका जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस पे 0 हो जाएगा, और y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, 4r/3π हो जाएगा. ठीक, तो अगर सेमी सर्कल कभी भी आपके क्वेश्चन में दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बेस से आप जो उसका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे वो x एक्सिस पे 0 मान लेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक हमको मिल जाएगा एक्सिस, सिमेट्रिकल एक्सिस.
और वाई एक्सिस में जो वैल्यू मिल जाएगी 4r/3 पाई मिल जाएगी। ओके, नाउ अब यहाँ पे ट्रेपेजियम का एक केस ले लेते हैं। ट्रेपेजियम का बेस मान लेते हैं, यहाँ पे नीचे ये बी है और ये कितना है, ए है। तो इस केस में सेंट्रॉइड मान लेते हैं कितना है, किस पॉइंट पे, कैपिटल जी पॉइंट पे है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स बार जो है वो जीरो हो जाएगा और वाई बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/3 इंटू b+2a/b+a। तो इस तरीके से हमको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर ये सर्कुलर सेक्टर के केस में अगर रेडियस r है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कितना हो जाएगा, 2/3r साइन अल्फ़ा/अल्फ़ा। नेक्स्ट केस हेमीस्फीयर, दिस इज योर हेमीस्फीयर। और हेमीस्फीयर के अगर रेडियस स्मॉल r है तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा ये कहीं ना कहीं इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे कहीं लाई करेगा। तो मान ले रहे हैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे कोई पॉइंट है जहाँ पे सेंट्रॉइड है। तो यहाँ पे जो हेमीस्फीयर है केस में इसका एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा और वाई एक्सिस क्या आ जाएगा, 3r/8 आ जाएगा। नेक्स्ट केस सर्कुलर कोन। ठीक है, सर्कुलर कोन के केस में जो वाई एक्सिस पे जो हमको सेंटर एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलने की वजह से, और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड h/4 मिल जाएगा। ठीक, सेगमेंट ऑफ स्फीयर 3/4 इंटू 2r-h का होल स्क्वायर अपन 3r-h। ये सारे तुमको फार्मूले मिल गए सेंट्रॉइड के लिए। अनदर मेथड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय द मोमेंट्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय द मोमेंट्स, सपोज दैट इफ द वेट इज acting in downward direction w, and this is very obvious, and you have to calculate the moment about a point A and distance is over here as d. So what is the value of moment, w into d, और clockwise है तो प्लस। तो इस तरीके से मोमेंट मेथड से भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। एक्स वाई प्लेन में कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये x1 डिस्टेंस पे, x2 डिस्टेंस पे और x3 डिस्टेंस पे कोई हम लाइन ड्रा कर देते हैं जहाँ पे उसका कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक, मान लेते हैं कि x1 y1 कोऑर्डिनेट है जिस पार्टिकल्स का, उसका मास क्या है, m1 है, x2 वाले पे क्या है, m2 है, और x3 वाले पे क्या है, m3। ओके, होल बॉडी का मास हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं m है, कितना है, m, और इस m का जो y एक्सिस से डिस्टेंस है वो मान लेते हैं x बार, कितना है, x बार। तो वेरिग्नास थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इस होल बॉडी का मास का जो मोमेंट होगा वो अलग अलग पार्टिकल्स के अलग अलग पॉइंट्स के जो मास मूवमेंट देगा उसके सम के बराबर होगा। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे m इंटू एक्स बार रिजल्टेंट मोमेंट हो गया और इंडिविजुअल पार्ट्स का मोमेंट इसके बराबर कर दो। वेरिग्नास थ्योरम यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक, वेरिग्नास थ्योरम लगा दिया। तो यहाँ से एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा mx/m। तो ये एक्स बार की वैल्यू आ गई, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। नाउ हियर m की वैल्यू क्या है, ओवरऑल मास है। अब आता है एक्सिस ऑफ रेफरेंस। एक्सिस ऑफ रेफरेंस,
So the center of gravity of a body is always calculated with reference to some assumed axis known as axis of reference, or sometime with reference to some point of reference. The axis of reference of plane figure is generally takes as the lowest line of the figure for calculating y-axis and the left line of the figure calculating x-axis. तो एक्सिस ऑफ रेफरेंस वो एक्सिस होती है जिसके रेफरेंस में हम क्या करते हैं कि सेंट्रॉयड को कैलकुलेट करते हैं। भाई किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही तो तुम किसी पॉइंट की वैल्यू निकालोगे, तो हम क्या करते हैं जो भी फिगर रहता है उस फिगर का सबसे, मान लो ये कोई फिगर है, इस तरीके से कोई फिगर है, ठीक, ये फिगर है कोई, ये फिगर है। अब इसका सेंट्रॉयड निकालना है, तो जो सबसे लेफ्ट पोर्शन है उसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं और सबसे नीचे वाले पोर्शन को क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस। तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सेंट्रॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इस एक्सिस के हिसाब से एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ठीक। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर अ प्लेन फिगर, सपोज दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर अ प्लेन फिगर की बात करें, इट मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर अ प्लेन फिगर, देन इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रॉयड। Because if we are talking about the plane figure, it means कि plane figures having no mass, and obviously we will talk about the area concentrated about a fixed point, and that fixed point is known as centroid. So we have to calculate the value of such type of points where the whole area is to be concentrated. It means कि we are talking about the centroid. So suppose that we have to calculate the value of coordinate for the centroid. It may be that you are calculating for such type of figure in which the axis of symmetry is available. It may be when you are calculating the value of centroid, in that case where the axis of symmetry is not available. It means in such type of cases when the axis of symmetry is available, we have to calculate the only one value either for the x-axis or for the y-axis. And if the axis of symmetry is unavailable, it means कि you have to go for the both values as well as x coordinate as well as y coordinate for the centroid. Now suppose कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका सेंट्रॉयड निकालना है, तो मान लेते हैं कि इसका सेंट्रॉयड जो है एक्स एक्सिस से एक्स बार की डिस्टेंस पे और वाई एक्सिस से क्या है, वाई बार के डिस्टेंस पे, ठीक है। और ये है सेंटर ऑफ एरिया, सेंट्रॉयड ऑफ एरिया, ठीक। यहीं से एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होना है। तो हम धीरे धीरे मान लेते हैं भाई कोई एक पार्टिकल, उसका एरिया A1 है, उसकी डिस्टेंस क्या है x1, इसी तरीके से कई सारे पार्टिकल्स होंगे। तो मान लेते हैं कि x1 डिस्टेंस पे एरिया A1 है, x2 डिस्टेंस पे एरिया A2 है, इस तरीके से कई सारे एरिया है। तो अरिथमेटिक सम ले लो, तो x बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो x के लिए इस तरीके से वैल्यू निकल जाएगी और y के लिए इस तरीके से वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंट्रॉयड निकाल लेंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तुम देखोगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर सिमेट्रिकल सेक्शन। तो मतलब हम ऐसे क्वेश्चंस कैलकुलेट करेंगे जिस क्वेश्चन में जो है उसमें सिमेट्रिकल सेक्शंस आएंगे। जैसे कि ये टी सेक्शन तुम देख रहे होगे, तो टी सेक्शंस में अगर इस तरीके से लाइन यहाँ से खींच दो तो ये पोर्शन इसका राइट पोर्शन हो गया और लेफ़्ट पोर्शन हो गया, ये क्या हो जाएगा, एकदम ये सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिकल फिगर हो जाएगा। ये सेक्शन जो है इसका जस्ट मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक। तो ये सिमेट्रिसिटी का केस है। तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो एक्सिस होगा सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होगा उसी पे तुम्हारा सेंट्रॉयड एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये जिस पे एग्जिस्ट करेगा इसको हम वाई एक्सिस मान लें और इस पर एक्स एक्सिस मान लें, तो कहीं ना कहीं जो है एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और हमको वाई बार की वैल्यू क्या करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी, ठीक। तो इस क्वेश्चन में ये 30 mm दिया हुआ है, ये ऊपर वाला रेक्टेंगल के लिए जो दिया है, और एक ये नीचे रेक्टेंगल दिया है, तो ये रीजन 2 हो जाएगा और ये रीजन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो रीजन 1 जो है वो यहाँ पे ग्रीन कलर से मान लो, रीजन 1 जो है ये हो गया ग्रीन कलर वाला, ठीक, और रीजन 2 जो है मान लो पिंक कलर, ठीक। तो इस टी टाइप के शेप को हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, रीजन 1 एज वेल एज रीजन 2। अब रीजन 1 और रीजन 2 का अलग अलग सेंट्रॉइड निकालेंगे, फिर उसका अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे, तो हमको सेंट्रॉइड मिल जाएगा पूरे का पूरे होल टी सेक्शन का। सबसे पहले हम चलते हैं भाई रीजन 1 के लिए। तो रीजन 1 के लिए हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो रीजन 1 के लिए एरिया कैलकुलेट करोगे तो 100 × 30 इज इक्वल 3000 mm² आ जाएगा, ठीक। अब x1 की वैल्यू तो 0 आ गई क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो y1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखते हैं क्या है, यहाँ पे कहीं सेंट्रॉइड आएगा इस पॉइंट में, तो x तो 0 आ गया और y क्या हो जाएगा 30/2, 30/2। बट कहाँ से हम लेंगे, एकदम बॉटम से लेंगे, तो ये 30/2 और ऊपर की वैल्यू कितनी थी 150, तो 150 - 30/2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 - 15 कितनी आ जाएगी 135। तो कहीं ना कहीं इसका जो सेंट्रॉइड है ये कितना आ गया वाई एक्सिस पे 135 mm पे आ गया, ठीक, 135 आ गया इसका, ठीक है, रेक्टेंगल रीजन 1 का। हम चलते हैं रीजन 2 के लिए। रीजन 2 के लिए एरिया कितना है 3600 mm² और y2 की वैल्यू कितनी है 120/2, तो 122/2 कितना हो जाएगा 60 mm, ओके 60 mm। अब हम क्या करेंगे, दो रेक्टेंगल है, अब दोनों रेक्टेंगल को एक पास में डाल लिए तो वहाँ पे टी पॉइंट बन गया। अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ से निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, रीजन 1 का A1 और Y1 पता है और रीजन 2 का A2 Y2 पता है, वैल्यूज रखोगे फिर आपको y बार की वैल्यू मिल जाएगी 94.1 mm, ओके। तो इस तरीके से आप सिमेट्रिकल सेक्शन टी सेक्शन के लिए आप सेंट्रॉइड की वैल्यू निकालनी है और आपने सेंट्रॉइड की वैल्यू निकाली है वाई एक्सिस पर 94.1 mm निकला है। मतलब इस टी शेप का जो सेंट्रॉइड होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, आई थिंक यहाँ पे कहीं लाई करेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 93.1, okay. I think this numerical should be very clear to you all, because in this numerical the simple data are given over here, and on the behalf of those values we have calculated the value of the coordinate for the centroid, because the axis of symmetry is available. So we have no need to calculate the value on the x-axis, because the x coordinate for the centroid becomes 0, as well as we have calculated the value of y bar. So finally हम एक टी सेक्शन सिमेट्रिकल केस के लिए हम सेंट्रॉइड की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, सिमेट्रिकल केस के लिए सेंट्रॉइड की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। इसमें क्या किए थे कि रीजन को जो टी सेक्शन था उसमें दो रेक्टेंगल थे, तो अलग अलग रेक्टेंगल को दो पार्ट में हम क्या कर लिए, स्प्लिट कर लिए, ठीक। तो पहले वाले रेक्टेंगल के लिए कैलकुलेशन कर लिए, फिर दूसरे वाले रेक्टेंगल के लिए कैलकुलेशन कर लिए, दोनों के लिए कैलकुलेट कर लिए। तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू में A1 Y1 और A2 I2 का अलजेब्रिक सम ले लिया, अरिथमेटिक मीन ले लिए, तो हमको फाइनली सेंट्रॉइड की वैल्यू मिल गई, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सम न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द unsymmetrical sections like L joint, because in the case of L joints there will be no axis of symmetry, so we have to calculate
uh, two values as well as x bar or and y bar both. Okay, thank you. So we will discuss the axis of unsymmetrical cases in the upcoming sessions, or in the next classes. Okay, thank you.